welcome all of you. Today, as we start the session, I would request and urge all of you to participate with us and repeat with me. I will say the first two lines of something that all of us have said it in our childhood, and if you could complete it with me, it'll be great. Akkad bakkad Bombay bo, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, सौ में लगा धागा, उसके आगे सौ में लगा धागा, चोर निकल के भागा. ठीक है, चोर हम उसको छोड़ते हैं, चोर निकल के भागा. Now, as we talk about the unheard sobbings, how safe are children at our homes? When we are talking about children, we have our four esteemed panelists, and when we talk about safety, safety has different connotations for each one of us. So I would want to start with Ms. Sutapa Sanyal. In the current context, what is the most pressing safety concern for our children? Because when we were young, our concern for our parents, I could just remember as vividly was that we should not go to a place wherein we might just get hurt near the stairs, or maybe go to a burning place wherein we might just burn ourselves. But over many decades now, the connotation of safety has changed. In today's context, what is the most pressing connotation of safety for children? Okay, first of all, let me thank the Awadh Conclave for having me here, especially Anand Vardhanji. So far as the concept of safety is concerned, all the concepts which were there before still continue. But unfortunately, and maybe the problem of child sexual abuse had existed before also, right? But of late, as the data shows, this has become a major, major concern, and it is not only that children are unsafe outside, but children are extremely, extremely unsafe within the four walls of the home, A, and B, as the data shows. Most of the crimes, most of the sexual crimes against children are committed by people whom they know, number one, and who are in a position of trust vis-a-vis that child. Thank you so much, Ms. Anand. I'll just add one word to that. We have had such children. And एक बच्चे ने अपनी माँ को मेरे ही सामने कहा कि माँ, तुमने हमें कहा था बाहर बच के रहना, ये क्यों नहीं बताया कि घर वालों से भी बच के रहना? This actually wrung my heart. हम घर में इस बात को करते ही नहीं हैं. We don't warn our children कि घर में भी बच के रहो. बिल्कुल. And as we talk about data, this is not a very pleasant data, but do you know the victims of child abuse in today's day and age are almost 100 plus children on a daily basis, 4,000 plus on a monthly basis, which gives us a round figure of 24,000 victims of child abuse. This is the seed that we are sowing into our future. मुझे लगता है कि थोड़ा चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ है क्या, इसके ऊपर भी बात कर लें. और जो जैसा उर्वशी ने बोला कि एक्चुअली इस पे डिस्कशन शुरू हुआ है, इसलिए अवेयरनेस शुरू हुई है और इस पे बातचीत शुरू हुई है. और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ क्या है, क्योंकि मुझे लगता है इतने सारे जो लोग बैठे हैं काफ़ी को पता होगा और काफ़ी को ये आइडिया शायद नहीं हो एग्जैक्ट डेफिनेशन की. यदि हम बात करें तभी शायद इस पे हम आगे बढ़ पाएंगे कि चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो डिफ़ाइन किया है उसके कोनोटेशन क्या है. दे हैव सेड कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ इंक्लूड्स array of sexual activities like fondling, inviting. This is not exact definition I am not giving because that's more complicated. It is the meaning. Inviting a child to touch or being touched
sexually, intercourse, exhibitionism, involving a child in prostitution or pornography, वो भी child sex abuse है. उसकी nude photograph लेना भी child sex abuse है. और online lure करना भी child sex sexual abuse है. तो it's wide. It's not only rape. So we need to sit up and pay attention to what is going on with the children in our country. And mind you, हमारा बच्चा का population सबसे ज़्यादा है दुनिया में. 440 million children, about 40% of India's population, if we talk in the Indian context. और हम लोग सोच रहे हैं कि एक demographic dividend हमें मिलने वाला है. Is this the demographic dividend we are looking at? Or are we looking at some demographic disaster? We need to address these issues. To add to what Madam Sanyal has said, एक वाकया याद आया जहां इन्होंने संस्कारों की बात करी. हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, वो बाहर विदेश घूमने गए दूसरे डॉक्टर साहब के पास. उनके बच्चे थे, तो जब घर पहुंचे तो उन्होंने समर जी से, जो कि सैम बन चुके थे, उनसे कहा, सैम आपने यू हैवंट मोड द गार्डन टुडे. तो सैम ने कहा, यू डिडंट पे मी माई डॉलर्स. तो संस्कृति की बात जहां आती है, वहां पिता पुत्र या पिता माता, उनके रिलेशनशिप्स की बात आती है. माँ ने उसको क्या सिखाया, पिता ने उससे कितनी दोस्ती की. अब ये घर में समझने की बात है कि माँ तो नेचुरल केयर गिवर है, माँ से तो बच्चे का बहुत गहरा और बहुत सुंदर रिश्ता हो जाता है. पर जहाँ हम चाइल्ड अब्यूज़ की बात करते हैं, तो बेटियों के साथ साथ बेटों पर भी ध्यान जाना चाहिए. और जहाँ हम बेटों के अब्यूज़ की बात करते हैं, तो वहाँ हमारे पिताओं को थोड़ा सा इसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा. They are not normal child caregivers. They have to make an effort to be friends with their child. They have to make an effort to make him aware that he also has certain child rights. So ये बहुत ज़रूरी है कि हर घर में बेटे के, एक चाणक्य नीति की जब हम बात करते हैं, तो चाणक्य उस जमाने में कह गए हैं कि षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत. मतलब उस समय भी उनको ये बात पता थी कि बच्चे का कम्युनिकेशन उसके फादर से या उसके मदर से बहुत तगड़ा होना चाहिए. मैंने क्यों ये बात कही, इसलिए कहा कि जब सब लोगों ने स्टैटिस्टिक्स बताया, तो ये हम लोग को और उसमें थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा कि किस एज ग्रुप में चाइल्ड का सेक्सुअल अब्यूज ज़्यादा होता है. वो है 15, 16, 17, 18 साल वाले बच्चों में. और ये वो बच्चे हैं जो घर से बाहर निकलते हैं, जो अपने पियर्स से, मतलब अपने दोस्तों से ज़्यादा मिलते जुलते हैं, और जो माँ और पिता में कम्युनिकेशन एक गैप हो जाता है, जो उनको राह दिखाने में असमर्थ बन जाते हैं माँ बाप. तो a communication with your parents makes you safe at home. संस्कारों की बात, डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी मेक्स यू सेफ इन द होम, आउटसाइड होम. आपको कामनेस, आपको बल मिलता है अपने स्पिरिचुअलिटी से. आई डू नॉट से कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बट हाँ, जिन घरों में ये देखा गया है कि स्पिरिचुअलिटी का वास है, उनके बच्चे ज़्यादा सेफ हैं, ज़्यादा बेटर हैं, और इन मुसीबतों का सामना वो खुल के कर सकते हैं. वो आके कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, बनिस्बत इसके कि चुपचाप अपने घर में बैठ जाएं. जी, डॉक्टर अग्रवाल, माय क्वेश्चन टू यू स्पेसिफिकली इज, students coming to college level, they come at a time when they are, you know, they are way past, they're just touching teenage. Having a student who has been abused in any way or form, nowadays, do you think it goes unnoticed because somehow we have these millennials who have been termed as rebels? So, you know, whatever act that they do out of the ordinary is seen as, oh, they are just rebellious.
They just don't want to conform to their parents' instructions or their friends' good advice. So every person who's different than the regular is seen as, oh, ये तो unique है या ये तो बचपन से ही rebel है. But how do we actually deal with it? Do we have counselors who kind of deep dive and see there's a possibility आपने of बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, एक एक कोशिश करती हूँ पर और जो अभी उर्वशी ने कहा इतना सारा चीज़ें दिमाग में चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ क्या नहीं पर एक ज़रूर मैं कहना चाहूँगी, किसी और रेफरेंस में लिखा गया है बट यहाँ कहना चाहूँगी, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। और यही हाल है चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ का। थोड़े से देर के लिए किसी ने अपने हवस के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपने प्लेजर के लिए जिस बच्ची या बच्चे के संग कुछ किया, उस बच्ची और बच्चे को क्या सज़ा मिली, क्या उसने ज़िंदगी भर भुगता, इसका उन्हें एहसास भी नहीं होता। और इसके लिए जैसा आपने, चूँकि आप चाहती हैं कि मैं कन्फाइंड रहूं इन बच्चों पे और कुछ केस स्टडीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। येस, वी डू हैव काउंसलिंग सेल एंड आई एम हेडिंग दैट ऑल्सो। एक मैंने स्टडी की थी एडोलेसेंट्स पे, रूरल एडोलेसेंट्स पे, और कल मैं उसका जिक्र भी कर रही थी। सहारनपुर के, जो अभी आपने बताया जिसका जिक्र किया, सहारनपुर के एक बाप ने कहा इसी चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ पे, या लड़कियों, अपनी लड़कियों के संग, अपने बच्चों के संग जो करते हैं, कि ये बताइए मैडम कि क्या आपके खेत में जो आम होते हैं उनको आप बिना चखे दूसरों को दे देते हैं? एंड दिस वॉज सो डिस्गस्टिंग, इट्स सो डिस्गस्टिंग। जैसी इस तरह के जब बिलीफ पैटर्न्स, बिकॉज बिहेवियर कहाँ से आते हैं? आपकी थॉट से फीलिंग्स, और फीलिंग से बिहेवियर। तो अगर आपकी इस तरह की थॉट होगी तो क्या फीलिंग्स होंगी और क्या बिहेवियर होगा, और इस तरह के एक नहीं हज़ारों केसेस हैं। मैं आपको 2-3 केस स्टडीज़ बताती हूँ जो मैंने डील की हैं और जिनका मुझे पता नहीं था कि ये सेक्स अब्यूज़ से रिलेटेड है। सॉरी, एक केस था, एक लड़की मेरे पास आई, मेरी स्टूडेंट थी, उसको बहुत तेज़ माइग्रेन हो रहा था। एक्चुअली उसको मैंने कुछ असाइनमेंट दे रखा था, वो कर नहीं रही थी, कुछ फेस्ट चल रहा था। मैंने उससे पूछा कि भाई तुम कर क्यों नहीं रही हो? तो उसने कहा मैम मेरे 5-6 दिन से इतना सीवियर माइग्रेन हो रहा है, मैं खा भी नहीं पा रही हूँ, सो भी नहीं पा रही हूँ, दवाई ले रही हूँ। तो एक EFT टेक्निक होती है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, मैंने सोचा लाओ 5-10 मिनट में इसको थोड़ा रिलीफ कर देते हैं। उस टेक्निक से काफ़ी जल्दी रिलीफ मिल जाता है पेन में। तो आई स्टार्टेड विद दैट टेक्निक, बट जैसे ही मैंने वो टेक्निक स्टार्ट की, कुछ चीज़ें उसकी अंदर से फीलिंग्स, उससे फीलिंग्स रिलेटेड होती हैं, वो निकलना शुरू हुई। मुझे लगा अब मैं इसको, आई कांट लीव हर, सो आई इमीडिएटली टुक हर सेशन। और वो सेशन करीब, उस सेशन में इतने सारे उसके इंसिडेंसेस सेक्सुअल अब्यूज़ के निकले। उस समय वो सोमैटिक चार्ज में थी, शी वॉज, क्योंकि ऑल थिंग्स एक्चुअली ब्रू इन योर माइंड एंड दे गेट रिफ्लेक्टेड इन योर बॉडी। तो सेक्सुअल अब्यूज़ कहाँ निकलेगा इसका कोई हम कुछ भी नहीं कह सकते। और उसके सेवरल इंसिडेंसेस वो रिलीज़ होते गए, उससे रिलेटेड फीलिंग्स को रिलीज़ किया। इट टुक अबाउट 2 hours एंड आफ्टर द सेशन आई वॉज सरप्राइज, शी वॉज सरप्राइज, हर माइग्रेन वॉज गॉन। और उसके बाद जो है, मैं अभी 1.5 साल से उसको फॉलो अप कर रही हूँ, उसको महीने में 4 बार अटैक पड़ते थे, नॉट अ सिंगल अटैक शी हैज़ फेस्ड। देयर इज़ अनदर केस जिसमें दैट गर्ल हैड कम टू मी फॉर सम रिलेशनशिप इश्यूज़। उसकी काउंसलिंग की, जब वो काउंसलिंग शुरू हुई तो उसने कहा कि मैम मेरा हाथ बहुत शेक करता है, और दैट वाज नॉट द इशू फॉर विच शी हैड कम। और मैं फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ ढंग से। एंड अगेन आफ्टर द सेशन आई जस्ट चेकड, हमने कहा अपना, अच्छा बाई चांस मैंने को याद है, मैंने कहा अच्छा जरा हैंडशेक देखो, तो उसका 70-80% करीब हैंडशेक कम हो गया था। और उसके भी जब केस निकला तो उसके बहुत सारे केसेस सेक्सुअल अब्यूज़ के बचपन के निकले। देयर वाज अनदर केस, मैं बहुत ब्रीफली आपको बता रही हूँ। देयर वाज अनदर केस, जो एक बहुत अच्छा स्कूल है सीतापुर में,
उसमें जो है रूरल बच्चों को पढ़ाते हैं, वो उनका बच्चा आया, एक्चुअली बहुत ब्राइट बच्चों को लेते हैं, वो एक बहुत ब्राइट लड़का था और उसका अमेरिका में कुछ मैथ्स विज़र्ड की तरह उसका सिलेक्शन हो गया था, बट ही हैड बिकम अ परपिट्रेटर ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़. सो ही हैड कम, और जब उसकी हिस्ट्री थी कि वो एक्चुअली व्हेन ही केम ही वाज अब्यूज्ड बाय अ टीचर एंड बैडली अब्यूज्ड. और धीरे धीरे क्या हुआ कि जब उस टीचर ने किसी और को अब्यूज़ करना शुरू किया तो इसको बहुत बुरा लगा कि आई एम हिज पार्टनर, बिकॉज शुरू में तो वो अब्यूज़ को सह नहीं पाता, बट ग्रेजुअली ही बिकेम हैबिचुअल. उसको लगा मैं पार्टनर हूँ, वो किसी और को कैसे अब्यूज़ कर रहा है, एंड देन ही बिकेम द अब्यूज़र हिमसेल्फ. तो उसके बाद उसके 3-4 सेशंस हुए एंड नाउ ही इज़ इन अमेरिका. उसकी अभी अभी मुझे मिली. तो सेक्सुअल अब्यूज़ कहाँ जाके निकलेगा हम में से कोई नहीं बता सकता, पर सेक्सुअल अब्यूज़ के लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई. बहुत ज़्यादा रिपरकशंस हैं, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, फिज़िकल, न्यूरोलॉजिकल, हर इमोशनल, हर तरह के. दे आर फाउंड टू बी डिफ़िकल्ट इन हैविंग रिलेशनशिप्स. डोमेस्टिक वायलेंस में भी इनके वो ज़्यादा पाए गए हैं. तो इस तरह के बहुत सारे इसके रिपरकशंस हैं, और कैसे इसको डील करना है आई थिंक इसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगी. तो डॉक्टर अग्रवाल, इन सारे जो आपने वाक़े बताए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज इंसिडेंट्स दैट यू हैव विटनेस्ड एंड यू हैव participated in helping the victims, Dr. Bhattacharya, I wanted to ask you, just as a layman, because as you all of us rightly agree to the fact that ये पहले होता रहा होगा, अवेयरनेस नहीं होगी. तो आज हम 21वीं सदी से भी आगे जा रहे हैं, तो क्या हैं वो साइंस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ अब्यूज़, इमोशनल कह लें, फिजिकल कह लें, मेंटल, जैसे मिस सान्याल ने कहा था, कैसे पता चलता है कि बच्चा अब्यूज़ हो रहा है किसी भी फॉर्म पे? मैं आपको एक बहुत नॉर्मल सा वाक़या बताती हूँ. दफ्तर में अक्सर मेरे साथ की जो कलीग्स हैं, दे टेक ऑफ्स ऑन अ फ्राइडे और ऑन अ मंडे स्टेटिंग कि मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है. एंड जस्ट एज एन onlooker, I seem to wonder why everybody's kids are falling sick on a Friday or a Monday. And then I have these colleagues of mine pleading with me and telling me to take up their work, and they say, you know, we wouldn't have said it, but our children are like, mama आप मत जाओ, आप यहीं रहो, मुझे घर पे रहने दो. एंड वाई इज़ दिस फ्राइडे मंडे पैटर्न? आप बहुत बच्चों के साथ संपर्क में आती हैं, क्या ऐसा होता है कि हर फ्राइडे को, हर मंडे को, क्योंकि जनरली इन द कॉर्पोरेट सैटरडे संडेज आर ऑफ, सो जनरली आई डोंट नो, पीपल, जैसे आपने कहा कि मदर्स आर नेचुरल केयर टेकर्स, मदर्स कम टू मी, मेल कलीग्स कम लेस, बट मदर्स कम टू मी विद द रिक्वेस्ट कि नहीं फ्राइडे को नहीं कर पाएंगे, मंडे को काम नहीं कर पाएंगे, बच्चे की तबीयत खराब है, और बहुत बड़ी संख्या में ये है. So in this particular context, वैसे तो छुट्टी होती है, तो they find those 2 days very nice to stay with their children. तो वो एक experience of the children together, बाहर जाना आना, वो सब तो the social causes are a different cause. And they're also experiencing high fever. That's like, Yes. and because if you say a stomach ache, you can't really measure. That's not tangible. But people have Apart reported from- that their children are suffering from fever, high fever. Yes, apart from the social causes कि family एक साथ रहे, जो डॉक्टर मंजू या डॉक्टर उर्वशी बात कर रही हैं, बच्चों में डिस्क्लोजर होता ही नहीं है. अगर अब्यूज़ हो रहे होते हैं तो भी डिस्क्लोजर्स आर वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. आपने मुझसे बात करी, तो मेरे पास जो बच्चे आते हैं, या तो वो आते हैं जब उनको प्रेगनेंसी हो जाती है तब वो आते हैं, या फिर वो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर लेके आते हैं. किसी के बहुत फीवर चल रहा है, किसी के बहुत पेट दर्द हो रहा है, किसी को बहुत डर लग रहा है, ऐसे वाले बच्चे आते हैं. सो हाल ही में एक बच्ची आई थी अपने माँ और बड़े भाई के साथ, तो मामा का लड़का साथ में आया. बच्ची बोलने से पहले ही कि मेरे पेट में दर्द है, रेकरेंट पेन एब्डोमेन चल रहा है, रोज़ ही हर जगह घूमते घामते अल्टीमेटली वो संजय गांधी पहुँचे कि हमें थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, शायद बच्ची को पेट में दर्द रहता है. माँ मेरे सामने बैठ गई, बच्ची मेरे पास बैठ गई.
भाई को मैंने बोला अच्छा तुम बैठो। बच्ची जब भी कुछ बात करे एक बार माँ को देखे एक बार भाई को देखे, और एज का डिफरेंस इतना ज़्यादा, भाई 21-22 साल का कॉलेज गोइंग बच्चा और ये बच्ची 10-11 साल की बच्ची, बिल्कुल सहमी हुई। तो मैंने माँ से और भाई से दोनों ने परमिशन मांगा और उनको कहा कि आप ज़रा बाहर बैठ जाइए, मैं बच्चे से बात करना चाहती हूँ। बच्चे से बात करी तो वी हैव ए मेथड ऑफ असेसमेंट एक्चुअली। तो हम लोग जब उसको असेस करते हैं तब फिजिकल भी देखते हैं और मेंटल प्रॉब्लम्स भी देखने की कोशिश करते हैं। जितनी बार मैंने उसको बात करने की कोशिश करी उतनी बार भाई ने दरवाज़ा खोला और कुछ न कुछ कहा। उसको बहुत डिमीन कर रहा था, ये तो ऐसे ही है, पढ़ती लिखती तो है नहीं। कुछ भी आए उस बात पे बार बार दरवाज़ा खोल के अंदर आए और बार बार बच्ची सहम जाए और चुप हो जाए। मुझे उसको वापस बाहर लाने में बहुत टाइम लगा। एंड आफ्टर 3 और 4 सेशंस, करीब मैडम सही कह रही थी, करीब 45-50 मिनट के सेशंस होते हैं, 1-1 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि पहली बार वो कुछ नहीं डिस्क्लोज करता है, कुछ नहीं बताएगा आपको, वो बात ही नहीं करना चाहेगा। इतना सहमा और दबा थ्रेटेंड बच्चा होता है वो, क्योंकि घर वाले जब इस बात का पता लग भी जाता है तो उसको डराते धमकाते चुप कराते ज़्यादा है। जो इज्जत के सवाल की बात आपने करी कि इसकी बात बाहर निकल के न जाए, आपको कंसेंट लेनी पड़ती है बच्चे की, बच्चे के केयर गिवर की। बच्चे की माँ कंसेंट नहीं देती है, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू प्रोसीड। अल्टीमेटली जब आपको बहुत समझा बुझा के कंसेंट मिल भी जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे को धीरे धीरे आपसे एक 2008 में एक बहुत सुंदर एक आर्टिकल निकला था, एक अमेरिकन जर्नल है पीडियाट्रिक्स, उसमें बच्चे ने बस इतना स्टेटमेंट दिया था, आई कैन टेल यू बिकॉज यू आर ए डॉक्टर। हम बच्चों के साथ बड़े होते हैं, वो डॉक्टर अंकल या आंटी को ट्रस्ट करते हैं, हमारे पास बार बार आते हैं, इसलिए कई बच्चे हमारे पास आके डिस्क्लोज कर पाते हैं, पर वो भी पहली बार में नहीं। डिस्क्लोजर इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। Thank you so much, Dr. Bhattacharya. Now, as we clearly mentioned that there are psychological interventions, medical interventions, once the case has been identified as a case of child abuse. I would also want to request Ms. Sanyal if you could draw the audience's attention towards what are the legal, facilities available. I think there's something like a POCSO, yeah. Yeah. So the legal provisions which exist is सबसे पहले एक POCSO Act है, that's Protection of Children from Sexual Abuses Offences Act. अब इस एक्ट में आपको ध्यान होगा ये बार बार इसको मोर एंड मोर स्ट्रिंजेंट बना दिया जा रहा है। लास्ट जो अमेंडमेंट था उसमें ये हुआ अगर चाइल्ड रेप होता है तो इट कैन इवन लीड टू, राइट, सो इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर स्ट्रिंजेंट। इसका सबसे बड़ा पहलू है मैंडेटरी रिपोर्टिंग। Whoever comes to know of such an offense has to report it. ठीक है, anybody, even a police officer, anybody, ठीक है। तो इसकी हैं issues. This is the legal provision. What I wanted to digress a little bit is legal provisions are there, but actually a multi-layered topic hai. I will just go on to one incident, another incident of amity I'll come to you. Ek bar I was sitting in my office, so there's this RJ, late 20s, he comes to me aise kuch baatcheet, radio jockey, I won't take the name, theek hai. So baatcheet hoti rahi, and then suddenly I said ki aajkal bahut child abuse ho raha hai, sexual abuse, and you won't imagine वो रोना शुरू कर दिया। I was so shaken, हमें लगा कि पता नहीं हमने ऐसा क्या बोल दिया। Then रोते रोते उसने बोला कि मैम, today is the first time that somebody has spoken about this topic and I want to open up before you कि हमारे साथ twice इस तरह के incident हुए। Now what happens is जब भी हम लोग abuse की बात करते हैं, especially
सेक्शुअल अब्यूज़ की, वी ओनली हैव द गर्ल्स इन पिक्चर. ऐसा नहीं है. Even male children are abused. आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले when स्मृति ईरानी जी was tabling that POCSO Act का amendment, she made a mention of 2 MPs. One of them was, I think, who was it? Brian O'Brien. Derek O'Brien was one of them, and she referred to somebody else also. So ये हम लोग ये ना गलत फहमी में रहें कि लड़कों की सेक्सुअल अब्यूज नहीं होती है, बहुत होती है. सो वी मस्ट, बिकॉज इस पैनल में अगर हम लोग इतना बैठे हैं और टाइम दे रहे हैं, देयर शुड बी सम टेक अवेज ऑल्सो. एंड अनदर इंसिडेंट आई रेफर टू मंजू जी टू दैट Amity event, you remember, when some foreigners had come and I was over there. Speak up. So when that gentleman asked कि audience में कितने लोग हैं, if you have ever been sexually abused or something, you remember all the males stood up. I was taken aback. क्योंकि जब तक हमें भी ये नहीं लगता था कि even the male child can be abused. And believe me, ये जिंदगी भर का ट्रॉमा होता है. इट डज नॉट गो अवे. दैट आंसर्स योर क्वेश्चन एंड इट शेप्स द बिहेवियर एज यू सेड. मैनी अनहैप्पी फैमिली लाइफ होता है, हर तरह की चीज़ें होती हैं. सो प्लीज़ एज मदर्स, एज फादर्स, प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट योर चिल्ड्रेन. उनको प्रोटेक्ट करिए ताकि इस तरह का, बिकॉज सी आफ्टर ऑल यू आर डूइंग दिस फॉर योर चिल्ड्रेन. तो मेरे आप लोगों सबसे गुजारिश है एज ऑडियंस, प्लीज ट्राई टू प्रोटेक्ट अनदर चाइल्ड. अ चाइल्ड इज वेरी वेरी वल्नरेबल. वो बता नहीं कुछ पाता है, सहता रहता है. So as we just conclude the session, I would like to take concluding thoughts of each of the panelists. Yeah. I'll just I'll just add one other thing. एक चीज और ध्यान रखने की बात है. There's a lot of victim blaming in our society. जो victim है उसी को उल्टा हम लोग blame करते, including police people also do it. So that's something which I'm trying to change, so that's different. So whenever a girl or a boy comes, whenever a child comes and says to the mother, कि such and such a thing has happened to me, please believe that child and don't victim blame. Thank you. इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगी कि कुछ 2-4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है. कि एक तो ये है कि मैंने हर बच्चे से ये पूछने की कोशिश की कि तुमने बताया था, तुमने अपने माँ बाप को बताया, और उनमें से 90% ने कहा कि नहीं बताया, जिसका कारण हम समझ नहीं पाए. फिर मैंने बहुत एनालिसिस की और मुझे ऐसे लगा कि हम लोग बचपन से बच्चे को ये कहते हैं प्राइवेट पार्ट्स के रिलेटेड शेम गलत है, किसी के आगे मत दिखाओ, किसी के आगे पैंटी मत उतारो, और वो शायद सुनते सुनते साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में इतना घुस जाता है कि एक तो जो अब्यूज़र है वो भी उनको थ्रेटन करता है, और दूसरा उस बच्चे के दिमाग में भी ऐसा हो जाता है कि ये कुछ हमने शेम वाली बात हो गई है जो हमें किसी को बतानी नहीं चाहिए. तो शायद जब हम शेम सिखा रहे हैं तो हम ये भी सिखाएं कि अगर कोई और तुम्हें फोर्सिबली या किसी भी तरह से इन पार्ट्स को टच करने की कोशिश करता है तो तुम मुझे बताओगे और मैं सुनने को तैयार हूँ. दूसरी बात है कि अगर कभी भी बच्चा आपको आके बताता है उसको सीरियसली लीजिए, और अब्यूज़र जो कि अक्सर आपका बहुत क्लोज व्यक्ति हो सकता है, आपका बहुत क्लोज रिलेटिव हो सकता है, उसके अगेंस्ट तुरंत एक्शन लीजिए, वरना ये बच्चा हमेशा के लिए, क्या उसके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वी डोंट नो. प्लीज़ टेक एक्शन. उनसे नाता तोड़िए, उनसे बात करिए, उनसे नाता तोड़िए. तीसरी बात है ऑब्जर्व योर चाइल्ड. आप अगर बच्चा कभी भी अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहा है जो नॉर्मल से थोड़ा फ़र्क है, जैसे अभी आपने कहा, बच्चे ने कहा मत जाओ यहीं रहो, ये आखिर उससे बात करिए. बच्चों से हमारी बातें उनके लेवल पे आकर नहीं होती, और हम हमेशा पेरेंट मोड में बात करते हैं, डू एंड डोंट में, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, इसमें बात मत करिए. उनके लेवल पे आके उनसे समझने की कोशिश करिए, बेटा क्या हुआ, क्या बात है, आई वांट टू नो यू. और जब बच्चा बताना शुरू करता है तो नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मत कहिए, नहीं तो बच्चा वहीं पे
चुप हो जाएगा, रुक जाएगा। अक्सर ये देखा गया और इन केसेस में भी Dr. मैंने देखा- Agrawal, I'm sorry, but you एक सेकेंड बस, मुझे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने बच्चों ने कहा कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहती क्योंकि स्कूल में कोई अब्यूज़र था, या मैं ट्यूशन नहीं जाना चाहती, ट्यूशन में कोई अब्यूज़र था। और माँ बाप ने ये समझा कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। अचानक बच्चा जा रहा है स्कूल और एक दिन उसने कहा मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, या माँ से कह रहा है तुम रुक जाओ। तो आई थिंक दिस इज़ an opportunity to have a dialogue with your child, listen to your child, have a dialogue and act on it. Thank you. Absolutely. So the psychological part madam has covered. The physical part, yes, as a doctor I would say, अगर बच्चे को बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा हो, अगर बच्चे के पैंटीज में ब्लड नजर आ रहा हो, या नहलाते वक्त आप देखें कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पे चोट है, इंजरी है, अगर बच्चा आपके पास आता है कोई ऐसे इन्फेक्शन लेके जो कि उसको नहीं होना चाहिए, जैसे कि HIV एड्स का इन्फेक्शन, जैसे कि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन, जैसे कि गोनोरिया का इन्फेक्शन, तो ये सोचने वाली बात है क्यों ऐसा इन्फेक्शन हो रहा है। सो दीज इन्फेक्शंस, और एक बार अगर सेक्सुअल अब्यूज होता है तो रिमेंबर हम उसको उस वक्त देख करके छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी है, अगर हेपेटाइटिस बी होना है, अगर एड्स के ब्लड में कुछ आना है, तो ये सारे चीज़ें, ये सिम्टम्स तब के तब नहीं मिलते, ये 6 महीने 1 साल तक जब आप बच्चे को फॉलो करोगे तब ये आपको मिलेंगे। तो उस वक्त अगर आपने फॉलो अप पे नहीं बुलाया और उस बच्चे को जाने दिया तो आप ऐसे केस मिस कर जाएंगे। Okay. Thank you so much, panelists, for all the insights. I know we had a very short period of time, but thank you. I think awareness, तो हमने, we have seeded the awareness, and I'm very hopeful with the audience sitting here that as Zig Ziglar once said, that children are our only hope for the future, but for the children, we are their only hope, not only for their present, but also for their future. So be with the children, not only your children, but children around you. और अगली बार जब मैं आपसे मिलूं तो हमें बोलना चाहिए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, पर चोर नहीं निकल के भागा। Thank you so much. Thank you so much.